Hello, I am Aniket from Tarkashastra Academy. CMAT exam is now near, है ना? We don't have the exact dates कब exam होगी, but mostly in first or second week of April we can expect the exam. We are now starting a video series till the CMAT exam, and this is going to be a daily CMAT preparation video series, wherein we will be covering important topics. Our major focus will be on IND and general awareness. We will be making few videos on QA, LRDI, and verbal as well. But the quantity of IND and general awareness videos will be high. For QA, LID and verbal ability, I would recommend that you post in the comment section कि कौन सा टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए है, so that we make it available for you. ठीक है? Overall, our target is to score more than 300 marks in the CMAT exam. ठीक है? CMAT exam में 300 marks score करोगे, then all the doors will open like KJ Somaiya, Great Lakes, Gym Goa, all these colleges will invite you for the personal interview round. So we have to target that. Only then we will be able to land in a very good college. ठीक है, मैं तो बोलता हूँ कि भाई टारगेट ऐसा करो कि भाई सीमेट के थ्रू JBIMS जाना है. ठीक है, टारगेट ऐसा रखो कि यार सीमेट के थ्रू JBIMS जाना है, मतलब टॉप 1-2 में आना है. ठीक है, टॉप 1-2-3 कैंडिडेट्स इन सीमेट वही JBIMS जाएगी थ्रू सीमेट. तो टारगेट यही रखना है कि इसमें ही जाना है ना. सपने देखना है तो बड़े ही देखो ना, है ना. छोटे छोटे सपने क्यों देख रहे हो? वंस यू टारगेट कि यार मेरे को सीमेट के थ्रू JBIMS जाना है, then you will land in any one of these three colleges, है ना, or other colleges which accept CMAT exam like IMT Nagpur and all. Okay, तो CMAT एग्जाम देने का मोटिव ही आपका ये रहना चाहिए कि यार मेरे को टॉप करना है एग्जाम. ठीक है. In today's video we are going to solve some MCQs of innovation and entrepreneurship. ठीक है, डेली का आपको एक ऐसा वीडियो मिलेगा 20 से 25 मिनट का. इन दिस वीडियो वी विल बी कवरिंग ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. आप लोग भी हमको गाइड करो कि कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए. नहीं तो इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड जनरल अवेयरनेस के वीडियोस तो बनाती जाएगी फटाफट फटाफट. ओके, चलो लेट अस स्टार्ट. इफ यू वांट टू जॉइन अस for any MBA entrance exam preparation, connect with us on the numbers given in the description of the video. We provide everything that is needed to help you join your dream B school. Okay, chalo let us start. First, in which type of business all owners share in gains and losses, and all have limited, unlimited liability for all business debts? Okay, so all the owners share in gains, है ना. तो sole proprietorship तो नहीं रहेगा, क्योंकि there will not be multiple owners and फिर उसमें share नहीं रहेगा. Sole proprietorship का तो 100% खुद का है. General partnership हो सकती है. ठीक है, जनरल पार्टनरशिप हो सकती है, लिमिटेड पार्टनरशिप हो सकती है. कॉर्पोरेशन नो, बिकॉज द even though the owner in a corporation, even though the owner share in gains and losses, they have limited liability. Okay, they have limited liability on business, on all business debts. Okay, same is with limited partnership. Okay, this will not be the answer. ओके, सो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप LLP आपने देखा होगा या फिर प्राइवेट लिमिटेड देखा होगा. इसमें ओनर के ऊपर डेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती. इन जनरल पार्टनरशिप दे हैव द अनलिमिटेड लायबिलिटी फॉर ऑल बिजनेस डेट्स. ओके, which of the following is a series of constant cash flows that occur at the end of each period for some fixed number of periods? Okay, so which of the following is a series of constant cash flow that occur at the end of each period for some fixed, so that is ordinary annuity. The annuity due is not a cash flow. Perpetuity is not a cash flow. Ordinary annuity means at the end of annual term, there will be a constant cash flow and it will go on till मतलब ये कंटिन्यू रहेगा जब तक वो सर्टन पीरियड के लिए वो ऑर्डिनरी एन्युटी लगाई. ठीक है ना, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस ले रहे हैं. नेक्स्ट, ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड sales revenue is rupees 25,000 and accounts receivable increased by rupees 800. What will be the amount of cash received from customers for the period? Okay, so
अभी ये अकाउंटिंग के बेसिस जिनको पता है, अभी जिन्होंने ग्रेजुएशन कॉमर्स में किया है उनको बहुत इजीली लग जाएगा। सेल्स रेवेन्यू इज 25,000 एंड अकाउंट्स रिसीवेबल इंक्रीज बाय 8,000। मतलब क्या, अकाउंट्स अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं और 8,000 और रिसीव करना है ना। अकाउंट्स रिसीवेबल मतलब सेल तो हो गया 25,000 का, बट अभी तक पूरा पैसा आया नहीं है। 8,000 का पैसा आने का बाकी है। तो कैश कितना है? 17,000 रुपए का कैश है। कैश रिसीव फ्रॉम द कस्टमर इज 17,000। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, एक अगर आपने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्लासेस लगाए, क्लासेस की फी है 20,000 रुपए। ठीक है। तो 20,000 रुपए की फी है, आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दिया 10,000 रुपीज का। सेकंड इंस्टॉलमेंट सेकंड इंस्टॉलमेंट आपका 10,000 रुपीज का रहेगा आफ्टर 1 मंथ, है ना। सो 1 मंथ लेटर आपका वो सेकंड इंस्टॉलमेंट रहेगा। तो सेल्स तो हो गए 20,000 के, अमाउंट रिसीव हो गया इतना, बट अभी अकाउंट्स रिसीवेबल कितना है? 10,000 ये अकाउंट्स रिसीवेबल। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। नेक्स्ट, dash is concerned with the acquisition, financing and management of assets with some overall goal in mind. तो ये सब कौन करता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विथ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इज नॉट एक्विजिशन, फाइनेंसिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एसेट्स। मैनेजमेंट ऑफ एसेट्स तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में नहीं होगा। एजेंसी थ्योरी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब नहीं रहेगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस, फाइनेंसिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एसेट्स। ओके। Annual cash flow dividends, annual cash dividends divided by annual earning or alternative dividends per share divided by earning per share is termed as what? So annual cash divide and dividends, annual cash dividends divided by annual earnings or alternative dividends per share, and alternative dividends per share divided by earning per share. Earning per share is termed as डिविडेंड पे आउट रेशो, है ना। अभी डिविडेंड पे जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो उनको समझ में आता होगा कि डिविडेंड पे आउट रेशो क्या है। फॉर एग्जांपल, कोई एक XYZ कंपनी है, उसका स्टॉक है 1,000 रुपए का एंड उन्होंने 10 रुपए का डिविडेंड पर शेयर दिया है, तो दिस इज द डिविडेंड पे आउट रेशो। ओके। An individual authorized by another person called the principal to act on letters on behalf is known as what? It is known as agent. ठीक है ना। हम POA देते हैं ना, पावर ऑफ अटर्नी दे देते। फॉर एग्जाम्पल, आपके कोई चाचा मामा लोग यूके में रहते होंगे, यूएस में रहते होंगे, उनका कोई फ्लैट है इंडिया में। ठीक है, उन्होंने आपको POA दे दिया है ना। मतलब अभी ये फ्लैट का सारा रेंट पे कैसे चढ़ाओगे, कितना पैसा लोगे, दैट इज योर POA, है ना। वो POA पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखा है एंड यू आर हिज एजेंट और यू आर द पर्सन रिप्रेजेंटिंग विद अगेंस्ट द पर्सन हु इज नॉट अवेलेबल। ठीक है। सेवेंथ, so quick ratio is known as, so quick ratio is nothing but acid test ratio. Quick ratio is also known as acid test ratio. ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स प्रोवाइड, है ना, ध्यान में रखना है ये बस। ठीक है ना। बहुत सारी चीजें, कुछ कुछ चीजें अपने को ध्यान में भी रखनी पड़ेगी। एट, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स प्रोवाइड्स द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ शील्डिंग पार्ट ऑफ इनकम फ्रॉम टैक्सेस। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स प्रोवाइड्स द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ शील्डिंग पार्ट ऑफ इनकम फ्रॉम टैक्सेस। तो शील्डिंग पार्ट ऑफ इनकम फ्रॉम टैक्सेस ये एक इंपॉर्टेंट टर्म। शील्डिंग पार्ट ऑफ इनकम फ्रॉम टैक्सेस इज टैक्सेशन। अभी देखो, इन्वेंट्री तो शील्डिंग पार्ट ऑफ इनकम फ्रॉम टैक्सेस नहीं, सप्लाईज नहीं, मशीनरी नहीं। डेप्रिसिएशन, यस, विल बी द आंसर, है ना। मतलब फॉर एग्जांपल आप बोलते हैं ना कि यार मेरे कंपनी का जो मशीनरी है वो इतनी डेप्रिशिएट हो गई, तो दैट मच अमाउंट ऑफ टैक्स आई आई विल नॉट पे, है ना। शील्डिंग पार्ट ऑफ इनकम फ्रॉम टैक्सेस। ठीक है ना। सो डेप्रिसिएशन इज दैट पार्ट। ओके। Then the process of determining the present value of a payment or stream of payments that is to be received in future is. So that is nothing but discounting,
है ना, ये हमने प्रेजेंट वैल्यू समझा होगा, ठीक है। सो प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू हमने सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में समझा है। अगर आगे जाके मेरे को 1 year लेटर आई हैव आई एम गोइंग टू रिसीव 1100 रुपीज एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या रहेगा, 10,000 रुपीज। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज डिस्काउंटिंग। ओके, नेक्स्ट, इन विच फॉर्म ऑफ बिजनेस ओनर्स हैव लिमिटेड लायबिलिटी। सो लिमिटेड लायबिलिटी, जैसे मैंने बताया कि लिमिटेड लायबिलिटी अबाउट द डेट, मतलब कंपनी का जो डेट रहेगा वो ओनर का डेट रहेगा, ऐसा नहीं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में तो वही है, कंपनी का डेट मतलब ओनर का डेट, ठीक है ना, कंपनी का डेट मतलब ओनर का डेट, ठीक है। पार्टनरशिप, अभी पार्टनरशिप में भी हो सकता है, बिकॉज हियर दे हैव नॉट मेंशन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, so this is definitely not going to be the answer. जॉइंट स्टॉक कंपनी, कंपनी बोल दिया तो प्राइवेट लिमिटेड आ गया, जहाँ पे लाइबिलिटी इज नॉट विद द ओनर्स, ठीक है, लाइबिलिटी इज विद द ऑर्गेनाइजेशन, एंटरप्रेन्योर्स तो ये मतलब अलग ही टर्म। सो ऑप्शन सी विल बी द आंसर इन दिस केस। 11th, all the constituencies with a stake in the fortunes of the company are termed as, तो जो जो constituencies है, they with a stake in the fortunes of the company are stakeholders ना। अभी stakeholders, अभी फॉर एग्जांपल अडानी ग्रुप में अगर आप देखोगे, तो अडानी ग्रुप में अडानी जो है, गौतम अडानी, ही इज अ स्टेक होल्डर, LIC इज अ स्टेक होल्डर, फिर उसके भाई बंधु भी स्टेक होल्डर है। तो ये कंस्टिट्यूएंसीज कैन बी अदर ग्रुप ऑफ कंपनीज एज वेल, ठीक है ना। तो ऑल दीज आर स्टेक होल्डर्स, ठीक है। अभी किसी कंपनी और कंपनी ने, फॉर एग्जांपल सॉफ्ट बैंक ने अडानी में इन्वेस्ट किया होगा, तो सॉफ्ट बैंक भी स्टेक होल्डर हो जाएगी, फिर हर एक का परसेंटेज कितना है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, 12th देखते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस encompasses the relationship among the companies. So corporate governance में it encompasses the relationship among the companies, shareholders, board of directors and senior management, shareholders, board of directors and senior management, है ना। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में ये तीनों लोग रहते हैं, शेयर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड, मतलब सिर्फ वो शेयर होल्डर्स एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में नहीं, वो सीनियर मैनेजमेंट को भी गवर्न करता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। डैश एक्शंस बाय एन एंटरप्रेन्योर इज मोस्ट लाइकली टू कंट्रीब्यूट इन क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन हो जाएगा बोल रहे हैं, तो मार्केटिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट में हो सकता है शायद, टेक ओवर ऑफ कॉम्पिटिटर नहीं, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन की बात है, इशूइंग ऑफ शेयर, डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट, यस डेफिनेटली डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट में कंट्रीब्यूट टू क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ एम्प्लॉइज इन एन ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट फ्लेक्सिबिलिटी, growth and diversification can be overcome by developing what? So all of this can be overcome. One second, 14th question. So the resistance of employees in an organization against flexibility, growth and diversification can be overcome by entrepreneurship, managerial domain, entrepreneurship, administrative. So resistance of employee हमको overcome करनी है, and resistance is against flexibility, growth and diversification. ये कैसे ओवरकम कर सकते हैं, इंट्राप्रेन्योरशिप से। सो इंट्राप्रेन्योर क्या रहता है, एंटरप्रेन्योर इज द वन जिसका पूरा रिस्क है, ठीक है, एंड ही इज इनटू डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट। इंट्राप्रेन्योर इज द वन जिसका रिस्क नहीं है, स्टिल ही इज डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल अंबानीज एंड अदानीज आर entrepreneurs, but then Satya Nadella and Sundar Pichai they are intrapreneurs. Why? क्योंकि जब उन्होंने फॉर एग्जाम्पल उन्होंने अपने कंपनी में जब कुछ भी काम किया, है ना, सत्या नडेला एंड सुंदर पिचई के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो रिस्क उनकी नहीं थी, है ना। वॉट एवर न्यू प्रोडक्ट दे वर डेवलपिंग, दे वर नॉट टेकिंग द रिस्क, क्योंकि वो बिल्ड हो रहा था अंडर देयर रिस्पेक्टिव कंपनीज का बैनर,
बट दे वर स्टिल वर्किंग एज एन एंटरप्रेन्योर, क्योंकि वो वैसे ही स्किल्स यूज कर रहे थे, नया प्रोडक्ट डेवलप कर रहे थे, दे वर केटरिंग टू द मार्केट, सो दैट इज व्हाई दिस इज इंट्राप्रेन्योरशिप। अभी इंट्राप्रेन्योरशिप देने की वजह से जो एम्प्लॉय का रेजिस्टेंस है रिलेटेड टू फ्लेक्सिबिलिटी, ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन, इट कैन बी ओवर। ठीक है, नेक्स्ट, डैश शोज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग समथिंग न्यू। सो ये तो बहुत ही इजी है, इनोवेशन shows the process of creating something new. ठीक है, which of the following is an advantage of the small firm in the innovation process? तो ability of the entrepreneur to carry out multiple tasks, ये advantage है क्या? नहीं। ability to raise finance, ये small firm में finance raise करना तो difficult है। ability carry out R&D, ये भी नहीं। ability of the entrepreneur to act on new ideas and product development, yes। ठीक है, जितने भी स्मॉल फर्म्स हैं वो क्विकली डिसीजंस ले सकते हैं, एंड बड़े फर्म्स को वो डिसीजन लेने के लिए बहुत अप्रूवल प्रोसेस रहता है, सब कुछ रहता है, दैट इज व्हाई they cannot act on new ideas and product development that easily. But in a small firm, an entrepreneur can act on new idea quite easily. Okay. 17th, the goal should be dash for the success of business plan. The goals should be generalized or specific or limitless or imaginary. क्या लगता है आपको? It is obviously specific. इतने इजी से क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको, ठीक है ना। इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में तो 20 में 20 टारगेट करो, ठीक है ना। इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप अगर आप अभी से भी पढ़ाई करना स्टार्ट करोगे तो भी विथ कॉमन सेंस एंड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ नॉलेज आप 20 में 20 मार सकते हो इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, डैश गिव्स सजेशन फॉर न्यू प्रोडक्ट एंड आल्सो हेल्प टू मार्केट न्यू प्रोडक्ट्स। तो अभी ये कौन है? फेडरल गवर्नमेंट न्यू प्रोडक्ट के बारे में सजेशन देगा क्या एंड हेल्प करेगा क्या न्यू प्रोडक्ट बनाने के लिए? नहीं। फिर और कौन हो सकता है? एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ये तो कोई बॉडी रहनी चाहिए या फिर कोई इंसान रहना चाहिए। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज गिव सजेशन, नॉट पॉसिबल ना। कंज्यूमर्स डू दे गिव सजेशन? नो, है ना। मतलब कंज्यूमर्स भी सजेशन दे सकते हैं, बट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल दे गिव सजेशन फॉर न्यू प्रोडक्ट एंड हेल्प मार्केट न्यू प्रोडक्ट्स। ठीक है ना। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल रहेगा दैट विल बी योर आंसर। व्हाई? बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सजेशन देगा कंपनी को कि भैया ये वाला टूथपेस्ट बहुत चलता है, तो ये वाला टूथपेस्ट बनाओ, ठंडा वाला टूथपेस्ट बनाओ, या फिर वो क्या बोलते हैं, कौन सा टूथपेस्ट है, नमक वाला टूथपेस्ट बनाओ, ये बहुत चलता है, सो दे कैन गिव सजेशंस। ठीक है, एक्सटर्नल लिंक्स में प्रोवाइड इंसेंटिव्स टू व्हाट? External links may provide incentives to attend business exhibition, introduce new working practice, introduce improvements to products. Yes, है ना। जो कोई भी एक्सटर्नल लिंक्स है उसको तुम बिजनेस एग्जीबिशन में बुलाओगे तो क्या फायदा? इंसेंटिव्स वैसे थोड़ी मिलेगी, है ना। अगर वो इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट बताएंगे, एक्सटर्नल लिंक्स हियर कैन बी द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, द कंज्यूमर्स, वो क्या हेल्प करेंगे नया वर्किंग प्रैक्टिस बनाने में। मतलब अभी आप लेटेस्ट से कि टूथब्रश की कंपनी में को क्या सजेशन दोगे, है ना। कैसे काम करना है ये थोड़ी सजेशन दोगे। नए प्रोडक्ट में क्या इंप्रूवमेंट्स कर सकते हो यही सजेशन दे सकते हो। फाइनेंस रेज करने की इंसेंटिव, फाइनेंस रेज करने के सजेशंस थोड़ी दे सकते हो, है ना। तो आप क्या कर सकते हो एज अ थर्ड पर्सन और एज एन एक्सटर्नल लिंक विच में इंसेंटिवाइज द कंपनी? तो वो कर सकते हैं आप इंट्रोड्यूसिंग improvements to products। LLM क्या होता है? LLM लोकल मार्बल मार्केट। ओके, LLM is local marble market। ओके, okay, little bit of confusion over here। LLM is actually local and middle market। Wait, 1 second, large and middle market। LLM is large and middle market। It is large and middle market। Okay, so so if you search on Google, there are multiple full forms for LLM,
but in business terms, if you consider, it will be large and middle market. Okay. 21st, Dash is used by entrepreneurs to acquire experience in an international market before making a major commitment. Okay. So what can you do? So minority interest is used by entrepreneurs to acquire experience in international market before making a major commitment. तो ये क्या है? Minority interest, है ना? Joint venture, merger, these are ये एक्सपीरियंस के लिए नहीं है. वंस यू हैव गेन द एक्सपीरियंस, उसके बाद आप जॉइंट वेंचर या मर्जर करते हो या मेजोरिटी इंटरेस्ट लेते हो. पहले तो आप माइनॉरिटी इंटरेस्ट लेते हो टू गेन द एक्सपीरियंस. ठीक है. Firms located in science parks are dash as compared to those located off science park. तो वो लेस इनोवेटिव है जरूरी नहीं है, मोर इनोवेटिव है जरूरी है. नो मोर और नो लेस, मोर ग्रोथ ओरिएंटेड नहीं, है ना. जो साइंस पार्क्स में जो फॉर्म्स है, अभी ये इनोवेटिवनेस इज डिपेंडेंट ऑन द एंटरप्रेन्योर. ठीक है. सो इट इज नो मोर और नो लेस इनोवेटिव. वो it depends on the person who is managing that business. Okay. Dash is not essential part of the contract. Dash is not the essential part of the contract. So place where the contract takes place, शायद नहीं. मतलब शायद ये transaction should be described in detail. Yes, it is an essential part. All the parties involved should be named. Yes, it is an essential part. Obtain signatures of the persons involved, ये भी essential part है. कहाँ पे होता है ये important नहीं है ना, है ना. मतलब इंडिया एंड सिंगापुर की डील हांगकांग में भी हो सकती है. ठीक है. तो प्लेस वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज टेकिंग प्लेस इज नॉट द एसेंशियल पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. गैट is established in 1947 under what? Under US leadership. So GATT is established under US. अभी गैट का फुल फॉर्म क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड्स. ठीक है. सो इट इज सिमिलर टू WTO, और all the WTO member countries, they have to follow GATT, General Agreement on Tariffs and Trade. मतलब it covers international trade in goods. ठीक है. the मतलब ये रूल्स बनेंगे कि इंटरनेशनल ट्रेडिंग कैसा होगा, क्या होगा एंड ऑल. ठीक है. सो दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय गैट. इट वाज डेवलप्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ठीक है. सो टुडे वी हैव स्पेंट some time on innovation and entrepreneurship. Tomorrow maybe we will spend some time on general awareness to try to understand what type of questions are asked in the CMAT exam. So the types of questions which we have covered today are of higher level, which you may not be able to solve in the exam, but this is what we need to practice for. I personally feel it is quite easy to score 20 on 20 in innovation and entrepreneurship. Only you need to be preparing well for it and use your common sense. You will definitely score that perfect marks. Okay. So stay tuned with this channel. We will be continuously making the videos related to CMAT exam and guiding you through the process. Thank you so much. Jai Hind.